Hi everybody, welcome to our channel named as Dialect Round. Here is Sheenam signing into our channel. I hope you all are in the great spirit guys. जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस करा था while giving you the lecture of grammar कि हम आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रामर रूल्स बताएंगे जिनके साथ आपको क्विक आंसर मिल सकते हैं while performing your any module of the PT or IELTS. So we'll start our lecture with that without wasting your time. So let's start with that particular miracle rules that you can even implement while performing your PT modules. So let's start. Start with the rule number 1. Guys, सबसे पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, चाहे आप आइल्स में ले लो चाहे आप पीटी में ले लो, अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर कुछ हैज हैव हैड आ रहा है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो भी मेरी वर्ब की फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आपका कोई सेंटेंस फॉर्मेशन में हैज हैव हैड आ रहा है उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है. तो आपके लिए काफी इजी होने वाला है कि जो भी आपको ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप में दी होगी या समरी विद ऑप्शन में दिया होगा तो आपको क्विकली वर्ब्स पे जाना है और स्पेशली वो वर्ब्स पे जाना है जो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में हो. इससे आप डायरेक्टली अपना आंसर लगा सकते हो बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई नॉलेज के, बिकॉज यू नो दैट इट ऑलवेज कंसिडर कि जब भी हैज हैव हैड आता है उसके साथ हमेशा हमें पास्ट पार्टिसिपल को ही यूज करना है. Let's play with some example. If there is in sentence formation like she has, we'll say she has completed her graduation. She has done her work. I have completed my homework. So can you guess it, like you know कि जब भी has have had आएगा हमें ध्यान रखना है कि उसके साथ हमेशा past participle ही use होगा, means verb की third form ही use होगी. So this is all about our next, which is our rule number 2 guys. You always need to remember whenever you have is MR और was were, उसके साथ भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, हमें पास्ट पार्टिसिपल को ही यूज करना है. बट स्पेशली आपको जहां पे मैं ये चीजें बता रही हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आप ये टेंस यूज कर रहे हो, चाहे वो इज एम आर है, चाहे वॉज वर है, चाहे हैज हैव हैड है, उसको फॉलो हमेशा वर्ब ही करनी चाहिए, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं. You can go with the ed form और जो भी उसकी थर्ड फॉर्म होती है like broken, okay, completed, so fought, thought. So आपको हमेशा थर्ड फॉर्म पे ही फोकस करना है, whether you have had, और अगर आपके सामने is am are आ गया या was were आ गया. For example, let's play the case of this. Like if I say it is being done by the student. She is completed her work. She was reached on time. So these are the some of the examples जो आपको ध्यान में रखनी है कि even if we are having tenses like is MR, was were, तो हमें अगर इसके साथ verb आना बनता है तो हमें उसके साथ उसका past participle ही use करना है. Rule number 3 guys, if you even have such kind of words in your sentence formation while performing your reading, like there is a be, being, being, again guys you need to use the past participle in that. Verb की third form ही आपको use करनी है जिसके साथ normally ed आता है या कुछ भी उसकी जो भी third form होगी, you need to play with that. If I'll take the case of an example, you can even, this workshop has been held in the art gallery next week. Now you can see we have has been, so हमें पता है इसके साथ भी हमारी verb की third form ही लगेगी. So always remember that जब भी आपके पास reading में कुछ ऐसे rules आ जाएं या आपको sentence formation नहीं समझ आ रहा, language नहीं समझ आ रही, you can even play direct with these rules and it will give you the direct and correct answer of that. Next guys, rule number 4, it is in the case of preposition. Yes guys, there is a one great rule of the preposition. जब भी आपकी sentence formation में कुछ to आ जाता है और उसके आगे blank आई है and you know कि यहाँ पे verb ही आना है, so always remember when you have preposition to and there's a further blank in that और आपको पता है कि उसमें verb आनी है, always play the base form of verb. Base form of verb means verb की first form आपको use करनी है, no changes in that, no ing you have to use, no ed, so you just need to direct fill the base form in it. For example, you can say I decided to go to New York for my further studies. So you can see to के साथ go है which is our verb, उसके साथ हमें पता है कि इसके साथ हमें verb की first form ही play करनी. 5 guys, it is again in the case of preposition. When you are having prepositions like for, of, with, after, before, about and many more, so you need to remember कि अगर ये वाली preposition मेरी reading में अगर मेरे को कहीं दिखाई दे रही है और उसके आगे blank आ रहा है
तो वहां पे अगर वर्ब प्ले होगी तो वी नो दैट यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हमें करना है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क फॉर ट्रैवलिंग। सो यू कैन सिंपली से दैट इफ हमारे पास कोई भी ऑफ, फॉर, विद, आफ्टर, बिफोर जैसी कोई टर्म आ गई है या प्रेपोजिशन आ गई है, हमें ध्यान रखना है कि इसके साथ जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी लगा ही आएगा। सो आपके लिए काफी इजी होने वाला है। जब भी आप ऑप्शंस को देखोगे यू विल सी ओके देयर इज ओनली 1 और 2 ऑप्शन ऑफ दैट, और कई बार तो एक ही होती है, तो आपका टाइम भी सेव होने वाला है और आप क्विक आंसर भी अपना फाइंड आउट कर लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रूल नंबर 6 गाइस। इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर विच इज ऑफ द आर्टिकल्स। फर्स्ट मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट, द अनदर वन इज इनडेफिनेट। डेफिनेट में आ जाता है हमारा द, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि द कहाँ पे यूज होता है गाइस। द की यूज 3 जगह पे होती है। पहला, द इज यूज फॉर द यूनिक थिंग्स, व्हेनेवर वी हैव समथिंग यूनिक जिसके जैसा कुछ और नहीं है, वी यूज द विद दैट। लाइक कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया कि विच इज वेरी यूनिक, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। लाइक वी कैन से द ताजमहल, the golden temple, or we can say the advancement of technology, the chemistry। तो कुछ भी ऐसी चीज जो यूनिक है उसके साथ द आएगा, तो आपको इजीली डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सी ऐसी लोकेशन है। इवन दिस इज द केस दैट यू कैन यूज इन द लिसनिंग, दिस इज द केस दैट यू कैन यूज इन द लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को आंसर मिल जाता है बट ही इज कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या आने वाला है। सो ही कैन इजीली डिटेक्ट, ओके द लगा हुआ है तो आगे ब्लैंक है, आई कैन फिल द सब्जेक्ट ओवर हियर, या कैसा कैपिटल लेटर में आएगा या स्मॉल लेटर में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि द जब कोई यूनिक चीज के लिए पर्पसफुली लगता है तो हमें पता है उसका पहला लेटर कैपिटल आता है। सो दिस कैन बी अ स्मॉल टिप फॉर यू व्हेनेवर यू आर डूइंग फिल अप्स इन द स्पेशली लिसनिंग केस। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा लेटर कैपिटल या स्मॉल आएगा। सेकेंड पर्पस द इज यूज फॉर गाइज फॉर द स्पेसिफिक थिंग। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हो या आपको पता है कि ये पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में दोबारा बात कर रहा है, तब भी हम द का यूजेज करते हैं। लाइक इफ आई एम सेइंग आई एम रीडिंग नाउअडेज द शेक्सपियर बुक, द बुक इज रिलेटेड टू द रिलीजन। So when I use the book, I will not say this book, I will say the book. Means मैं वही specific book की बात कर रही हूँ जो मैंने अभी बताया शेक्सपियर की बुक है। तो सेकेंड पर्पस इसका ये है कि हम स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं द को। The third usage of the is guys for the plural forms. Yes, whenever we have anything in the plural form, even we can use the with that. So these are the definite rule which is of the जो हम three purpose के लिए use करते हैं। Let's move to the indefinite articles which is a and an. Guys इसके भी particular rules हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि a and an तभी use होता है whenever we have some kind of a noun in singular form. Yes guys, always remember a and an हमेशा singular forms के साथ चलता है। Whenever we have vowel nouns which start from the vowels like a, E, I, O, U और any kind of a sound of vowels जैसे कि honest आ जाता है या R आ जाता है, इनके साथ भी an लगता है। and always remember it must be singular. Same on the other hand guys, if I take the case of a is again used for the singular but make sure it always goes with the consonant nouns. तो जिन words जो भी हमारे words हैं वो अगर हमारे consonant से start हो रहे हैं, consonant means A, E, I, O, U को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सभी वर्ड्स के साथ हमारा अ लगेगा एंड मेक श्योर इट अगेन मस्ट बी सिंगुलर. So these are the rules and that even you can implement in any module of your IELTS or PT guys. It's not about only ये bounded है reading तक. मैं अभी बता रही हूँ कि listening में भी ये चीजें आपको hint देने वाली हैं कि कैसा word मेरा यहाँ पे fill होने वाला है. चाहे आप blanks की बात कर लो, चाहे आप reading की blanks की बात कर लो. Number 7 guys, अभी हमने पढ़ा इन द रूल नंबर 6 कि जब भी हमारा कोई आर्टिकल आ रहा है और आगे ब्लैंक आ गई है और हमें पता है कि यहाँ पे नाउन आएगा, सो वी हैव टू सिंपली गो विद द सिंगुलर, प्लूरल, स्पेसिफिक कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एंड द को फिल करना है. बट देयर इज अनदर रूल इवन दैट यू नीड टू मेक श्योर. अगर आपका जो ब्लैंक है या कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन है, अगर वो पहले एंड द और बीच में आपके ब्लैंक आ गई है और उसके बाद नाउन आ गया है, तो वहां पे आपको क्या फिल करना है गाइस? डायरेक्टली यू नीड टू गो विद द एडजेक्टिव. यस, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, या मैं हिंदी में बोलूँ तो विशेषता. इन द केस ऑफ अगर मैं बोलूँ ओके अ बॉय मीन्स मेरे को काफी कम इंफॉर्मेशन है इस चीज के बारे में कि अ बॉय इज व्हाट. अगर कोई बोल रहा है ओके अ स्मार्ट बॉय,
सो जो मेरा स्मार्ट है दैट वी कंसिडर एज अ एडजेक्टिव गाइज, कि जो किसी की विशेषता या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा बताता है, वी कैन कंसिडर देम अंडर एडजेक्टिव फॉर्म। तो दिस इज आवर रूल नंबर 7, कि जहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हमारा कोई आर्टिकल और नाउन के बीच में ब्लैंक आ रहा है, इट ऑलवेज गोज विद द एडजेक्टिव। इट कैन बी स्मार्ट, tall, long, beautiful. So these kind of adjective we can play with that. लेट्स मूव टू द रूल नंबर 9 गाइस, कि जब भी हमारे पास कुछ काउंटेबल में आ जाता है, लाइक मैनी आ जाता है, तो उसके साथ हमेशा नाउन आएगा, बट मेक श्योर मैनी वी नो दैट इट इज यूज फॉर द काउंटेबल थिंग्स। तो जो हमारा नाउन आएगा वो भी एस और ई एस की फॉर्म में आएगा। If you are saying, like for example, if I'll take the case of, you need to say, okay, many students are coming for this party. Okay, you can even go with that. Or I can speak many languages. So you know that कि जब भी many आया है, and we know that कि many हमेशा countable form के साथ जाता है, तो जो भी मेरा आगे noun आएगा उसके साथ मेरे को s या es की form play करनी होती है। वन काफी नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एस ई एस नहीं आता, बट स्टिल इट कैन कम्स विद द many. For example, if I take the case of people, police, so these are that words which are comes under noun, but it does not contain s and es with that. So you just simply play with, okay, many people. You don't need to play any kind of s or es with that. So make sure in this your mind even. Last but not the least, our rule number 10, guys. Whenever we have in front of us like it, which, that, ऑलवेज मेक श्योर कि इसके साथ जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म आएगी, इट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। बिकॉज क्योंकि हमारा जो भी इट होता है या विच होता है या दैट है, ये हमेशा एक पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं, और जब भी हम कोई पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए यूज करते हैं तो उसके साथ हमें एस और ई एस प्ले करना होता है। यू कैन सिंपली गो विद द सिंपल प्रेजेंट रूल, जिसमें हमें पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ हमें वर्ब प्लूरल प्ले करनी होती है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें वर्ब सिंगुलर प्ले करनी होती है। सेम विद दैट, व्हेनेवर वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस लाइक इट, विच, दैट, तो हमें पता है कि इसके साथ जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी उसके साथ सिंपली हमें एस और ई एस लगाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 10 important rules that you make sure while doing your any kind of English language test, because it will help you and going to save your time to get your answers quickly. I hope you are going to like this video and going to implement this session in your daily practice, and do practice, guys, as we all know that practice makes everybody perfect. And do tell us in the comment section if you want such kind of videos more, and we are going to make it for you definitely. So here is Sheenam, guys. Take care. One more thing, not to forget, subscribe, like and comment on our channel. Take care.